हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आओ जी। पहले टैली कर लो, फिर जो दिक्कत परेशानी होगी हर क्वेश्चन में वो कर लेंगे। सो प्लीज टैली इट फर्स्ट। खुल गई आपकी नोटबुक? आओ जी। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 9,50,000 टू पंकज कैपिटल अकाउंट 10 लाख। बोलो जी, ओके है? बोलो भाई। मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 lakhs टू कैश अकाउंट जी 6,25,000 टू ना टू बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टू वेंडर ऑफ मशीनरी अकाउंट ये लिख सकते हो। टू क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिख सकते हो। टू सप्लायर ऑफ मशीनरी लिख सकते हो। तीनों ओके हैं। चाहे मशीनरी का वेंडर लिख लो, चाहे मशीनरी का क्रेडिटर लिख लो, चाहे मशीनरी का सप्लायर लिख लो, तीनों ओके हैं जी। उसमें आएगा जी 25 लाख माइनस 625 विच इज 18,75,000 जी। 18,75,000। सी पार्ट जी मशीनरी टू कैश। डी पार्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजीत एंड कंपनी। ई पार्ट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एफ पार्ट लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश अकाउंट ना, लोन अकाउंट डेबिट आएगा जी 32,000। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट जी 35,000। सैम्यूअल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। कैश अकाउंट डेबिट 39,750। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू सैम्यूअल 40,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 37,500। depreciation account debit to machinery account. Now your machinery is not of 25 lakhs, it is of 25 lakhs plus 48,000, because in the second B part you have done entry machinery account debit 25 lakhs, and in the C part you have done machinery to cash 48,000. So 25 lakh 48,000 into depreciation is 3,82,200. 3,82,200 is the value of depreciation. Question number 14 जी। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल अकाउंट जो भी बनता है जी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 30 लाख टू बैंक अकाउंट 15 लाख टू भूषण ट्रेडर्स 15 lakhs. Bhushan Traders to purchase return 1,20,000. Pawan debit to sales account 4 lakh. Bhushan Traders debit 1,50,000 to cash account 1,47,000 to discount received 3,000. उसके बाद जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन 80,000. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000. Samples to purchases 20,000, drawings to cash 37,500, drawings to purchases 10,000. Question number 15. Cash account debit to capital account 5 lakh, bank account debit to cash account 3 lakh. No entry for C part. D part purchases account debit 3 lakh to cash account 150 to bank account 150. Then it is carriage account debit to cash 5,000. Bank charges account debit to bank account 2,000. Furniture account debit 20,000 to purchases 15,000 to cash 5,000.
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट. Bank account debit to capital account 35,000. Question number 16. Cash account debit to capital account 5 lakhs. Purchases account debit 3 lakh to cash 150 to Gopal 150. Cash account debit 60,000. Sonika debit 40,000 to sales account 1 lakh. Sonika debit to purchase return account 10,000. Gopal debit. Okay. Sales return account debit to Sonika 10,000. E part Gopal debit 150 to cash 149 to discount received 1,000. Bad debt account debit to Sonika. Bad debt account debit to Sonika में आना है जी 30,000. Rent account debit 10,000. ना. Rent account debit 5,000, drawings account debit 10,000 to cash account 15,000. आते बाद में पहले आप प्लीज टैली कर लो पहले. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3 lakh, 5 lakh, 25 lakh, total is 33 lakhs capital. Building account debit to cash account 1 lakh. Insurance premium account debit, drawings account debit to cash account 15,000, 7,000, 22,000. Loss of stock by fire account debit 80,000 to purchases account 80,000. Insurance company debit to loss of stock by fire 80,000. Cash account debit to commission received 25,000. Commission received account debit to commission received in advance 5,000. Bank account debit 64,000. Loss of stock by fire account debit 16,000 to insurance company 80,000. Salaries account debit 70,000 to cash account 48,000 to outstanding salary account 22,000. Depreciation account debit to building account. Depreciation will be provided not on 25 lakhs but on 26 lakhs. 26 lakhs का 10% 2,60,000 entry depreciation account debit to building account 2,60,000. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 13 ए से लेकर जे तक कोई दिक्कत परेशानी? ए से जे. हाँ जी. बी फॉर बॉय. हाँ जी. 25 लाख की बेटा मशीन खरीदी है. 25% होता है 1/4 दैट इज 6,25,000. वो तो आपने पे कर दिया. मशीनरी आ गई जी 25 लाख टू कैश आ गया जी 6,25,000. बचा 18,75,000. वो पे तो नहीं हुआ, इतना तो क्लियर है आपको. तो मतलब लायबिलिटी है. किसको पैसे देने हैं? जिनसे मशीन खरीदी थी. उन्हें वेंडर भी कह सकते हैं, उन्हें क्रेडिटर फॉर मशीनरी भी कह सकते हैं, उन्हें सप्लायर ऑफ मशीनरी भी कह सकते हैं. तो तीनों में से आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो. ठीक है जी. हाँ जी बेटा. बेटा चेक कहीं नहीं लिखा ना. अगर कुछ भी नहीं होता तो हमेशा क्या होता? कैश. इफ द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट रिटन देन विल कंसिडर इट ऑलवेज एज कैश. ए टू जे पार्ट जी. एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन नंबर 13. अगर कम काम करके आए हो, जैसे शेरगिल साहब बैठे हैं, नहीं काम करके आए, पीछे हम भी नहीं काम करके आए, है ना? चैतन्या जी काम नहीं किया. चलो तुम में इतने तो गट्स थे कि तुम आ गए, बाकी आए ही नहीं छुट्टी पे भी. सैटरडे तो भगवान ने श्राप दे रखा. अगर कहीं चले गए सैटरडे ट्यूशन तो मृत्यु खड़ी है दरवाजे पे. जहान है तो जहान है, ट्यूशन का क्या है ना? हम पागल हैं जो सैटरडे भी लगा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस हो जाए. फिर जून में घूमी पे जाना आपने. फिर जुलाई में आते सार कईयों के स्कूल में पेपर हैं, फिर उनको सिलेबस आना है ना? हम तो नेक्स्ट डॉम की गोली खाकर भी आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. सिर फटड़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है. पापी पेट का सवाल है और तुम्हारे करियर का सवाल. अल्लाह बापू बना ही दूंगा, है ना? फैक्ट्री ला ही दूंगा. इतना मेरे से लिखवा के ले लो. वो फैक्ट्री लगा चाहे दे, उजाड़ने में तुम कसर नहीं रखोगे. आज के टाइम पर ना धंधा करना नौकरी करने से ज्यादा मुश्किल है. बापू से पूछ के देखना.
लंका लगी पड़ी है। धंधा करना ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज धंधा करने में सिर्फ माल नहीं बनाना होता, बहुत कुछ देखना होता, और वो तभी आ पाता है जब पढ़ाई की हो। जब पढ़ाई ना की हो ना, तो यहीं आप एक दूसरे के कान में फूंक सकते हो। कल जाके बोला ना 5 बंदों के साथ मीटिंग करके आओ, ऑर्डर लेकर आओ, वहां मुंह से जुबान नहीं निकलनी, क्योंकि जुबान आती है निकलती कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस आता है जब तुम्हारे पास कोई स्किल हो। ड्रीम टीम 11 बनाने स्किल नहीं होती। चलो 13th क्वेश्चन, ए टू जे पार्ट कुछ और पूछना हो जी? हाँ जी बेटा बोलो जी। जे पार्ट जी, डिप्रिसिएशन देनी है बेटा मशीनरी पे 15%। ये देख तेरी मशीनरी कितने की दिख रही है। अब जरा सी पार्ट चेक कर, कितना इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, उसकी जनरल एंट्री ये बनती है बेटा। ठीक, अब चेक कर मशीनरी 25 लाख, मशीनरी 48,000, टोटल कितनी हो गई? 25,48,000। उस पर कितने परसेंट लगा दिया? 15%। एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। हाँ जी, और बेटा इंक्लूडिंग लिखा है, चेक करो। 35,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, तो जो लोन था, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, दैट वी हैव रीपेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 32,000 एंड 3,000 इज interest. That's why the entry stands at loan account, bank loan account debit 32,000, interest on loan account debit 3,000, to bank account 35,000. Anything else जी? चलें जी, 13th हो गया जी, ओके है। आओ जी 14th, बताओ जी, कुछ पूछना हो? क्वेश्चन नंबर 14 जनाब, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 14 अगेन जी, कोई डाउट? 15 प्लीज। हाँ जी। सी पार्ट में एंट्री बेटा जी इसलिए नहीं है, हमने शेयर खरीदे, ब्रैकेट में कुछ लिखा, मतलब धंधे के नाम पर नहीं खरीदे, मेरे खुद के नाम पे खरीदे। नहीं, आगे पढ़। और पैसा कहां से दिया? सेविंग अकाउंट ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बिजनेस के नाम का जो अकाउंट होता है उसे सेविंग नहीं बोलते, उसे करंट अकाउंट बोलते हैं। इसलिए उसने अपने ही बिजनेस, अपने ही अकाउंट में से पैसा निकलवाया, अपने ही नाम पे शेयर खरीदे। बुक्स हम बना रहे हैं बिजनेस की, ओनर की नहीं। तो बिजनेस का ना कुछ आया ना कुछ गया, दैट इज वाई नो एंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 जी, एनीथिंग एल्स? हाँ जी बेटा। जी पार्ट, गुड्स यूज किए बेटा फर्नीचर बनाने के लिए, और वेजेस पे की। रिधिमा जी चेक करो जरा, डी पार्ट चेक करना। गुड्स कौन से हैं? टिम्बर लकड़ होगी जी, तो फिर हम लकड़ी वाले हो गए। अब फर्नीचर में भी लकड़ी लगती है, तो वो हमारा गुड हो गया। हमने यूज कर लिया फॉर द रीजन अदर देन सेल्स, तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 15,000 से, और जो दिहाड़ी लगी लेबर की वो हमने कैश में पे कर दी। तो एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टू परचेजेस अकाउंट 15,000, टू कैश अकाउंट 5,000। बेटा आप जो वेजेस पे कर रहे हो किस वजह से पे कर रहे हो? फर्नीचर, लकड़ी लग रही है, किस पे लग रही है? फर्नीचर इज अ कॉमन अकाउंट, डेट सेम, one common account is there and that common account is getting debited, that is why furniture. और कुछ जी? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, एनीथिंग एल्स? 16 जनाब। हाँ जी, जी पार्ट, ओके जी। आपने रेंट पे किया जी, ये जगह है जी जिसका रेंट पे कर रहे हो, इसमें से इतनी जगह रेजिडेंस के तौर पे यूज हो रही है, और इतनी जगह बिजनेस के पर्पज से यूज हो रही है। टोटल रेंट इस जगह का है 15,000, 2/3 ये रहा, 1/3 ये रहा। अब धंधा सिर्फ कितने में हो रहा है? 1/3। 15,000 का 1/3, 15,000 का 2/3। यहां धंधा हो रहा है, कौन कर रहा है?
तो रेंट भी किसे पे करना चाहिए, लेकिन पे कहां से हो रहा है, तो क्या हो गया 15,000 में से 10,000 क्या हो गई और 5,000 क्या हो गया रेंट। इसलिए मैंने एंट्री बोली थी जी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 15,000। कहानी क्लियर है जी? एनीथिंग एल्स जी? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एनीथिंग एल्स? नहीं जी? चल क्वेश्चन नंबर 17 जी, क्वेश्चन नंबर 17 जी। कमीशन हमें मिला बेटा 25,000 का, जिसमें से 20% जो है वो एडवांस है। एडवांस हमेशा होता है आने वाले टाइम पीरियड का। तो पहली एंट्री मैंने बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कैश मेरा एसेट है, बढ़ गया, कमीशन रिसीव्ड मेरा रेवेन्यू है, बढ़ गया 25,000। 25,000 का 20% होता है 5,000, तो 5,000 है रिसीव्ड इन एडवांस। पैसे आ गए, सर्विस प्रोवाइड नहीं की, इट इज माई लाइबिलिटी टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। ये क्लियर है? अब मैं पहली एंट्री में कमीशन रिसीव कितने से क्रेडिट कर चुका हूं 25, लेकिन मेरी कमाई सिर्फ 20,000 है। 5,000 मेरी इस साल की अर्निंग नहीं है। कौन से साल की अर्निंग है? तो मेरे को 5,000 से अपनी अर्निंग को क्या करना पड़ेगा? अर्निंग का नाम है कमीशन रिसीव्ड। कम हो गई, मैंने डेबिट कर दिया, एंट्री बनी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। So second entry stands at commission received account debit to commission received in advance 5,000। आपकी बुक में जहां पर ये एंट्री एक्सप्लेन की गई है वहां दो एंट्री हैं, दो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन यही है जो मैंने आपको बताया, दैट इज 2 एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। दूसरा ऑप्शन कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू कमीशन रिसीव्ड 20,000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। बट आई प्रेफर आप पहला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि उसके बाद जब इलस्ट्रेशन में सेम पॉइंट आया तो आपकी बुक ने भी 2 एंट्रीज वाला ऑप्शन यूज किया। एनीथिंग एल्स जी? क्वेश्चन नंबर 17 बोलो भाई। हाँ जी, एफ पार्ट प्लीज, एफ पार्ट के लिए चेक करो। डी पार्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने? आपने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च कर दिया, मतलब 2 एंट्रीज हो गई, एक नुकसान की और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम को लॉन्च करने की। कितना इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया था? अब कंपनी ने हमें 80% दिया, सिर्फ 80,000 का 80%, वो पे भी हो गया जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 64,000। एक्चुअली में लॉस हुआ जी फिर सिर्फ 16,000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इन द सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस कंपनी में जब हमने क्लेम लॉन्च किया था तो इंश्योरेंस कंपनी वॉज अवर एसेट। एसेट कम हो गया 80,000 से। डन जी? एनीथिंग एल्स जी? डन। जर्नल असाइनमेंट 3 बोला था जी लेकर आने को। जर्नल असाइनमेंट 3 खुल गई? केड़ा केड़ा क्वेश्चन हो चुका है जी? फर्स्ट हो चुका होगा जी, आई होप सो। सेकंड हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ भी हो चुका है जी। थर्ड नहीं हुआ जी। सेकंड भी नहीं हुआ जी, सॉरी थर्ड नहीं हुआ ना जी। कोशिश करें करने की। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से मत पूछिएगा, अपनी दिमाग लगाइए, जितना हो पाता है करिए। क्वेश्चन नंबर 3,
मजीद बंद करना, पॉज कर दो। आओ जी, पढ़ तो लिया कि पढ़ा भी नहीं? चलो एडवांस दिया जी। कैसे? किसे? क्यों? बिल्डिंग कितने की है? चेक कितने का दिया है? बोलो जी ओके। कोई दिक्कत परेशानी जी? ऐसे ठीक है जी। अभी चेक कितने का है बेटा? बोलो। 1 लाख का देंगे, बाकी भी डन जी। इतना इसमें कोई दिक्कत परेशानी जी? एडवांस एसेट है, डेबिट हो गया जी। बैंक भी एसेट था लेकिन कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया। डन। अब आओ जी सेकंड पॉइंट पे। पेड द बैलेंस अमाउंट बाय चेक। भाई कितने की बिल्डिंग थी? कितना दे चुके हो? तो बैलेंस कितना बचा? 19 लाख। कैसे पे कर रहे हो? चेक। डन है जी। फिर आपने चेक इशू किया किसके लिए? स्टैंप पेपर के लिए जी। कितने का है स्टैंप पेपर जी? 1,40,000। इसका भी चेक की इशू हो रहा है जी। हो रहा है? बोलो। फिर जी लॉयर साहब की क्या पे की है? फीस कितनी? और ब्रोकरेज आपने पे की है जी एजेंट को, प्रॉपर्टी डीलर को, जिसने आपकी बिल्डिंग आपको दिलवाई। और ये दोनों पेमेंट्स कैसे हो रही हैं? कैश। कितनी कितनी है जी पेमेंट? 20,000 और 15,000। डन है जी। ठंडी हवा कब मिलेगी? जब रजिस्ट्री हाथ में आ जाएगी। रजिस्ट्री हाथ में तब आएगी जी जब आप एजेंट को उसके पैसे दे दोगे, लॉयर साहब को उसके पैसे दे दोगे, और स्टाम्प पेपर खरीद लोगे, और बिल्डिंग का बकाया पैसा दे दोगे। तो जनाब बिल्डिंग कितने की थी? नो, गलत जवाब। बिल्डिंग जनाब थी 20 लाख प्लस प्लस प्लस। कितने हो गए जी? 1,75,000 इन तीनों का मिला के, प्लस 20 की बिल्डिंग। कितने की हो गई जनाब बिल्डिंग? 21,75,000। तसल्ली है जी? लो जी फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 21,75,000। ऑल कूल है जी? बोलो। हाँ भाई, जो पैसा ऑलरेडी एडवांस दे चुके हो वो भी दोबारा दोगे। वो क्या था? क्या था? एसेट। सारी उम्र रहेगा। बिल्डिंग आ गई तो एसेट खत्म हो गया। टू, एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट। हाँ जी, एडवांस फॉर बिल्डिंग इज ओनली हाउ मच? 1 लाख। अब जनाब चेक वाली पेमेंटें बता दो। 19 लाख और 1,40,000 टोटल इज 20 लाख। लो जी 20,40,000। ओके जी। अब कैश वाली पेमेंट बता दो जी। 35,000 टोटल कर लो जी। 21,75,000 आ जाएगा। डन है जी? हाँ जी हाँ जी, इधर के उधर। पहले आप पढ़ो।
पहले आपको जब तक ठंडी हवा वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक तो कुछ भी नहीं क्लियर हो सकता। वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेक आवर एसेट इनटू वर्किंग पोजीशन इज टर्म्ड एज एन एसेट नॉट एज एन एक्सपेंस। लॉयर साहब की फीस, स्टाम्प पेपर की फीस, एजेंट का खर्चा, सब के सब मेरे लिए बिल्डिंग की कॉस्ट है, क्योंकि इनके बिना बिल्डिंग का पोजेशन मेरे को मिलने वाला नहीं है, बिल्डिंग की ओनरशिप मेरे पास आने वाली नहीं है। इज दैट ओके? जल्दी बोलो। तो बिल्डिंग कितने की थी? 20 लाख, बिल्कुल ठीक। 140 का क्या लगा? स्टाम्प पेपर। लॉयर साहब ले गए 20,000 के 15, एजेंट साहब ले गए 20, तो सारा मिलाकर बनी मेरी बिल्डिंग 19 प्लस 140 प्लस 15 प्लस 20, वो बनता है 21,75,000। मैं पहले से एडवांस दे चुका हूं जसपाल जी को। कितने का? 1 लाख का। वो इसीलिए था कि लो भाई टोकन मनी ले लो, हम मुकरते नहीं। तो वो जो 1 लाख है मैं दोबारा पे करूंगा नहीं, तो वो मेरा एडवांस था। एडवांस यहां डेबिट था, यहां क्या हो गया? अब अगर आपको इतना मालूम हो कि डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है तो मेरा एडवांस कट गया। क्या लिखा है? टू बैंक कितना? 1 और 19 20, पैसे 20 ही दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है जी? अब 1 लाख एडवांस काट दिया जी, 19 लाख आपको क्लियर कट सेकंड ट्रांजैक्शन की पहली लाइन में लिखा है पेड द बैलेंस बाय चेक, वो 19 लाख हो गया जी। 140 भी चेक के थ्रू पे हो रहा है जी, और 20 और 15 पे हो रहा है जी थ्रू कैश। डन है जी। सेम एंट्री टेस्ट में होगी जी, पहले बता दिया। यस, क्या दिक्कत है? ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जसपाल लाइबिलिटी क्यों होगा? एक खुद सोच के देखो। एक तो उन्होंने लाख रुपया फड़ाता, हाँ तो 19 है ना बाकी। अभी लाख रुपए के बदले में क्या आया आपके पास? झुंझुना कुछ भी नहीं आया। आया? ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा, कल भी किया अपन ने। एडवांस फॉर परचेजेस, एडवांस फॉर मशीनरी तो हम पहले भी कर चुके। तो एडवांस दे रहे हो आप, पैसे गए कि नहीं गए? पैसे जाएंगे तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? खुद सोचो। अच्छा, पैसे जाएंगे तो क्या होगा? क्रेडिट टू बैंक हो गया। जल्दी बोलो। अब तो आप तो जसपाल जी को लाइबिलिटी बना रहे थे, मैं दोनों अकाउंट क्रेडिट थोड़ी कर सकता हूं। टू बैंक टू जसपाल, डेबिट में भंगड़े पा रहे हैं आप। क्लियर है जी? आगे चलें प्रभु। हाँ जी, अप्रैल 15 ये तो बता दो कम से कम। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक जी। लिपा पोती की जी, बिंदी सुर्खी लगा दी उसको। चलें आगे। नेक्स्ट आओ जी। 18(4) क्या खरीद रहे हो? लो जी, खरीद लिया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का खरीदा जी? वो एक्सचेंज ऑफर पता ना जी, पुराना लाओ नया ले जाओ। ठीक है जी, फिर पुराना भी लेकर गए। कितनी बुक वैल्यू है जी पुराने की? वो अब हमारे पास है कि गया? पहले किसके पास था? क्यों था? हमारा, तो एसेट का फेवरेबल बैलेंस चला गया। तो टू फर्नीचर अकाउंट, ये तो गलत हो गया। फर्नीचर फर्नीचर जुड़वा भाई, राम श्याम सीता गीता सोहन मोहन। अब ठीक है? अब ठीक है जी? ब्रैकेट डाल दी कि पता चल गया ये केड़ा फर्नीचर था? 20,000 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू? जो बुक में है मीन्स हमारी बैलेंस शीट में है। कितनी? ओके, हमारी किताबों में फर्नीचर पुराना कितने का बोल रहा है, लेकिन जिसको हमने फर्नीचर दिया एक्सचेंज में, जिससे हमने नया फर्नीचर लिया, वो कहता है जनाब आपके पुराने फर्नीचर की बुक वैल्यू जितनी मर्जी हो, मैं तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू दूंगा सिर्फ कितनी?
क्या करे, मानने पड़ेगा जी अब। तो 20 की चीज कितनी वर्थ दे रही है? फायदा नुकसान, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अकाउंट डेबिट 8,000। अब लॉस डेबिट होता है, इतना तो क्लियर है। और 8,000 कहां से आया, ये क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। तो मेरा एक सवाल है, पुराना फर्नीचर आपको कितनी वर्थ देके गया? आपका नया फर्नीचर कितने का था? आपने पुराना फर्नीचर दिया, वो कितने पैसे काट लेंगे पुराने फर्नीचर के? तो अब आपको कितना पैसा और देना पड़ेगा नया फर्नीचर लाने के लिए? 88,000 का क्या इशू करेंगे टू बैंक अकाउंट? डन जी? जल्दी बोलो। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेक्चर लग चुके हैं जी 22, सिर्फ और सिर्फ जर्नल के। और 22 दिन में नहीं लगे होंगे, महीना हो गया इसको, बीच में संडे भी आता ना और सैटरडे भी आता है, तो 30 दिन लग चुके हैं। आप चाहे पहले दिन चले जाओ, चाहे आप आज के दिन चले जाओ, कहानी यही है और कहानी हमेशा यही रहेगी। और जब तक ये कहानी नहीं क्लियर, फिर तुक्का ही है जी। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। आप चेक कर सकते हो, आपके सामने आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन अगर आप इसे ब्रेक डाउन करके चलो, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग, एसेट्स एवरीवेयर। सी 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 क्या हैं? एसेट। कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा। बढ़ रहा है तो डेबिट ही हो रहा, कम हो रहा है तो क्रेडिट ही हो रहा। अनोखा कुछ नहीं जी, बहुत इजी है जी, बहुत इजी। याद करोगे इसे। वो भी क्या दिन थे जब जर्नल किया करते थे, जब 12वीं में पहुंचे तो यही दिन याद आएंगे, यार बहुत आसान हुआ करता था, अब तो जान ही ले ली इसने। वाकई 12वीं का अकाउंट जान ले लेता, जान छोड़ता ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तब आपको कहेगा यार वो बढ़िया था, जिंदगी हसीन थी, जब कैश टू राम और राम टू कैश हुआ करता था। अब तो पता ही नहीं चलता क्या क्या हुआ करता है। रोज रोज जिंदगी, हर दिन नई जंग है, जीत जाएंगे हम, ऐसा गाना गाओगे आप, लेकिन हार जाओगे स्कूल के पेपरों में। बीसीएम का कोई बैठा नहीं? ओह नाइस, पास हो गए 40 में से? ये जितने तुम्हारे नंबर आए ना, नोट करके रख लो, ठीक? अगले साल सेम टाइम, सेम डेट, सेम प्लेस, आई लास्ट अगेन। जितने अब आए हैं उनका हाफ कर लेना, उतने भी आ जाएं तो भी बहुत है। अपने स्कूल में 12वीं का रिजल्ट पूछ के देख लो, कितने लिस्ट के हैं। डर के आगे डर ही है, जीत जूत नहीं है। आगे बढ़े प्रभु, समझ आ गया? हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, ऑर्डर प्लेस हो गया जी। नो एंट्री क्यों ही, पैसे चले गए? अरे पहले कुछ नहीं, एक ही है। एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड विद मैसर्स पायनीर इंडस्ट्रीज फॉर अ लाठी मशीन, लाथ मशीन, लाथ, कॉस्टिंग हाउ मच? 5 लाख। चलो ऑर्डर प्लेस कर दिया जी। कल ऑर्डर ही प्लेस किया कि पैसे भी दिए? एडवांस फॉर बिल्डिंग था, यहां पर एडवांस फॉर ना ना लाथ मशीन। ओ बेटा मशीनरी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना, थोड़ी इज्जत तो दे दो लाथ मशीन को, पैसे कमा के देगी। और बड़ी बात, आपका ये जो एडवांस फॉर लाथ मशीन है, ये केड़ा रहना है? जब मशीन आ जानी है तो ये एडवांस क्या हो जाना है? खत्म, जैसे आपका यहां खत्म हो गया था। ठीक है जी?
चलो फिर 5 में से 0, 5 में से 0, 5 एंट्रियां थी, एक ठीक होगी, वेट को। चलो अब कोशिश करो, 5वां क्वेश्चन, पहली एंट्री शायद हो जाए। हाँ भाई, पहली एंट्री जी। चलो इतना ही बता दो, मशीन ऑर्डर करी हुई है कितने की? कब ऑर्डर किया था? पास्ट में, पहले। डन। कल ऑर्डर ही किया था कि एडवांस भी दिया था? पक्का दिया था। तो एडवांस जब दिया था तो एंट्री पास की थी कि नहीं? क्या? यही वाली एंट्री पास की होगी, हाँ के ना? मोड ऑफ पेमेंट हमें मालूम नहीं तो हम कैश मान लेते हैं। कितने की मशीन थी? कितना एडवांस दे रखा? तो आज सबसे पहला काम तो है वो जो एडवांस दे रखा है उसे क्या कर दो, खत्म। टू एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत परेशानी जी इसमें? ये क्लियर है? मशीन है कितने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की थी? 5 लाख। तो खुद देखो अब कितनी पेमेंट पेंडिंग है, 4.5 लाख, हाँ के ना? एक पुरानी मशीन है, वो बिजनेस की है कि ओनर की है? कितनी वैल्यू है उसकी? कौन एक्सेप्ट कर रहा है इसे? तो 50,000 रुपए सप्लायर काट लेगा, मतलब उतनी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो 50,000 सप्लायर ने काट लिए। किस चीज के काटे? किसकी है मशीन? वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज टू कैपिटल अकाउंट। डन हो गया जी? जल्दी बोलो। फिर से पूछ रहा हूं जी, मशीन कितने की थी? कितना एडवांस दे चुके हो? कितना कट गया? तो बचा कितना? 4 लाख पे कर दिया जी आपने। व्हाट्स द मोड? लो जी, मुक गई। ये तो इजी थी, हुई फिर भी नहीं। चलो अगला May 1। डेट सेम है बेटा जी, हाँ के ना? तो 5 लाख नहीं, 5,10,000, क्योंकि May 1 की एंट्री भी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट हो, ऑक्ट्रॉय हो, लोडिंग चार्जेस हो, इट डजंट मैटर। ठंडी हवा। डन जी? चलो अगली दो तो इजी हैं, अगली दो इजी है वो तो कर दो। May 2। बोलो जी बोलो। बिल्कुल ठीक जी, 1 नंबर कमा लिया आपने। आइए जी May 5 पे। May 5। हाँ भाई, क्या हो गया अब? फिर ब्रेक लग गई? हाँ भाई, चलो कुछ तो बोलो, सही बोलो गलत बोलो। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 40।
बिल्कुल ठीक है जी, तुक्का लग गया। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट बॉडी ओके। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। अब ध्यान से सुनिए, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया सारी मशीनों के ऊपर। उसमें से एक मशीन नई मशीन थी, कितने की थी, सॉरी कौन सी थी, उसके ऊपर जो पहले साल आप इंश्योरेंस दे रहे हैं वो इंश्योरेंस उसी की कॉस्ट है। गाड़ी खरीदते हो, बोलो हाँ के ना, तो चेक पेमेंट ही होती है जी, पक्के की, हाँ के ना। कच्चे की भी होती है, कच्चे की नहीं, कैश भी होती है, प्रोवाइडेड आपकी किताबों में कैश इन हैंड बोलना चाहिए कि आपके पास इतना कैश पड़ा है, हाँ के ना। आपने कार खरीदी, अब अगर घर पे है तो जाकर चेक करना, उसका इनवॉइस भी पड़ा होगा। अगर घर वालों ने संभाल के रखा होगा तो ठीक, वो उसी में पड़ा होता, डैशबोर्ड के अंदर वो जो लेदर वाला कवर होता ना, बस उसी में पड़ा रह जाता वो। अगर घर वाले थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर में कार का बिल पड़ा होगा। अब उस बिल को जाके एनालिसिस करना, उसमें कॉस्ट ऑफ द कार अलग है, इंश्योरेंस अलग है, आरसी चार्जेस अलग हैं। लेकिन जब आप गाड़ी लेकर आए थे तो जितने पैसे शोरूम वालों के दे के आए थे, आपके लिए तो गाड़ी उतने की थी, आरसी मिला के, इंश्योरेंस मिला के, सब कुछ मिला के, हाँ के ना। लेकिन जब आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी होगी, अगले साल आपने फिर से इंश्योरेंस को क्या कराया, रिन्यू, फिर कार टू कैश था कि इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश था। कहानी समझ आ गई जी, जल्दी बोलो। दैट इज वाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 45,000, इंश्योरेंस सॉरी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। डन हो गया जी, जल्दी बोलो जी, होमवर्क सुन लो जी। कहां तक करके आए थे, हाँ जी 17, 18 से लेकर 17 तो हो गया ना जी, क्या नहीं हुआ, 18 से 22 ना, 23-24 हम कर चुके हैं, 25-26, 18 से 22 एंड 25-26 पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर इसे खत्म करेंगे। डन जी, मिलते हैं जी। हाँ जी, कुछ नहीं बस बिल्कुल ठीक है जी।